ਹੈਲੋ एवरीवन ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮਰਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 10th ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਓਮਸ ਲਾਅ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਮਝਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਰ ਵੀਡੀਓ। ਓਮਸ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਓਮਸ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਤੀ, ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, ਕਰੰਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਸੋ Ohm's law states that across a conductor current flowing through it is directly proportional to the voltage applied across it। सो वोल्टेज किस दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट दे। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट क्योंकि वोल्टेज या ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੀਪ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। ਸੋ ਆਫਟਰ that we are removing the sign of proportionality. V is equals to IR. This is the basic formula to calculate voltage in terms of R and I. Here R is a constant called resistance. R is a constant and called resistance. So now formula for R is V upon I. If I will ask you what is the unit of resistance, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया V अपॉन I करके, इसकी जो यूनिट है रेजिस्टेंस की उसको हम क्या लिखेंगे? What is the unit of resistance? So let's understand about it. रेजिस्टेंस की यूनिट को अगर हम इसकी बात करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे पास इसकी जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो क्या बनेगी? दैट इज वोल्टेज की यूनिट हमारे पास क्या है? V की वोल्ट है एंड करंट की यूनिट हमारे पास क्या है जी? एम्पियर है। सो वोल्टेज अपॉन एम्पियर, दिस इज कॉल्ड ओम। दिस इज कॉल्ड ओम। एंड जो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया, एक लाइन सीधी लगा के, उसके बाद सर्कल ड्रॉ करके, उसके बाद फिर इसको सीधी ड्रॉ करके, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या बना? सिंबल ओम। एंड इसकी यूनिट को हम कैसे लिखेंगे? वोल्टेज अपॉन एम्पियर, दैट इज कॉल्ड ओम। क्लियर हो गया? एंड जो ये लॉ है इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है वो हम रेजिस्टेंस के बाद डिस्कस कर लेंगे। जो हमारा अभी टॉपिक है दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज बेसिकली, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, resistance is a property of a conductor
एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे पास कोई भी कंडक्टर है जो 100% कंडक्टिविटी वाला नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास कंडक्टर है भाई कंडक्टर है इट मींस 100% करंट उसमें से फ्लो करेगा, ठीक है। सो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें कि 99.9% कंडक्टर है, इसमें 0.1% इम्प्योरिटी है, कुछ भी हो सकता है भाई। अगर हमारे पास यहाँ पर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उस इम्प्योरिटी के कारण क्या होगा, जो करंट फ्लो करेगा उस करंट के फ्लो को इम्प्योरिटी क्या करेगी, अपोज करेगी, रोकेगी। एक तरफ से करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस की हमेशा करंट से लड़ाई होती है, रेजिस्टेंस उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, उसका जो मूवमेंट हो रहा है, उसका जो फ्लो हो रहा है सर्किट में से, रेजिस्टेंस उसको रोकेगी। सो रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम है टू अपोज द करंट, करंट की अमाउंट को, करंट की वैल्यू को घटाना। सो हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की बात करें, दिस इज अ कंडक्टर, कंडक्टर हैज इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इसकी लेंथ कम ले रहे हैं, अगर हमारे पास कंडक्टर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, उसकी भी वैल्यू लेंथ के कॉरेस्पॉन्डेंसली कम होगी। अगर हमारे पास वायर इतनी है, हमारे पास इतनी वायर है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, अगर हम इस वायर को इंक्रीज कर दें, अगर हमारे पास इतनी वायर है भाई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे पास इसकी जगह इतनी वायर है, इतनी वायर है, तो रेजिस्टेंस भी इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। दिस वन इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर हमारे पास वायर इतनी ज्यादा, इतनी मोटी वायर है तो उसमें से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब है अगर हमारे पास वायर मोटी है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है इट मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा हो रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, उसमें मैक्सिमम होगी। अगर हमारे पास वायर इतनी सी है, बिल्कुल बिल्कुल छोटू सी है वायर, इट मींस उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होगा। इट मींस when area of cross section increases resistance of the wire decreases and vice versa. So these two are the factors on which resistance depends. अगर हम इसके बाद टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर हमारा हो रहा है इंक्रीज। टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या 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 हमने हीट प्रोवाइड की कंडक्टर को, हीट प्रोवाइड करते ही उसमें क्या होता है, थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स डांस करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे वो पहले मूव कर रहे थे, मूव करने की जगह पर वो क्या करेंगे, डांस करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स डांस करेंगे तो क्या होगा, थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के कारण जब वो ऐसे डांस कर रहे हैं, डांस करते करते एक दूसरे के बीच टकराएंगे भी, कोलिजन्स भी इंक्रीज होगी। ये सब होने के कारण स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। भीड़ ज्यादा होने के कारण चार्ज का फ्लो जो है, चार्ज का फ्लो डिक्रीज होता है। जैसे ही चार्ज का फ्लो डिक्रीज होगा वैसे ही करंट की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज होते ही क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दीज थ्री आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद एक टॉपिक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे को बता रहा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे हमारे पास क्या, करंट भी इंक्रीज होगा।
अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज आई, दिस इज वी, तो ऐसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर हम एक्चुअली देखें, एक्चुअल हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ये तो हमारे को बोल रहा था ओम्स लॉ कि भाई जो इसका ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा, उसकी लाइन क्या होगी, लीनियर होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। बट एक्चुअल में क्या बन रहा है, यहां पर तो लीनियर बन रहा है, लेकिन इसके बाद इसकी लीनियरिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, और वायर ऐसे क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है वे ऐसे हमारे पास क्यों होता है। अगर हम इसका मेन रीजन की बात करें, इतनी कहानियां बनाने की जगह पर अगर हम इसकी मेन रीजन देखें, मेन रीजन क्या होगा, जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज की होते करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, इसमें हीटिंग प्रोड्यूस होगी, हीटिंग प्रोड्यूस होगी। अगर हीटिंग प्रोड्यूस होगी इट मींस हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास हमने वोल्टेज, जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज को अप्लाई किया है, वोल्टेज को अप्लाई करते ही करंट इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज होते ही क्या होगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट गर्म हो रहा है इट मींस एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस होते ही क्या होगा, उसमें से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी एंड करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो ये जो लाइन लीनियर बन रही थी, तो लीनियर बनते 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 ये क्या हो जाएगी, अपने एम से भटक जाएगी और लीनियरिटी लूज कर देगी। तो हमको ओम्स लॉ बोल रहा था कि जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, बढ़ाने से करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट एक्चुअली जो क्या हमारे पास जब हीटिंग इफेक्ट आता है तो वहां पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। सो दिस वन इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब सेकंड लिमिटेशन क्या बनेगी, जैसे हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं, हमारे पास यहां पर वोल्टेज है, इधर हमारे पास करंट आ जाएगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, इसको हम ना ऐसे ले लेते हैं, यहां पर हमारे पास करंट है, यहां पर हमारे पास नहीं नहीं नहीं, इसको हम ना ऐसे ले लेते हैं, यहां पर हमारे पास करंट है, यहां पर हमारे पास वोल्टेज है। जैसे हमने क्या किया है, एक साथ हमारे पास सेमीकंडक्टर है, हम सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड को जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, जैसे कि पी रीजन को पॉजिटिव से अटैच करेंगे, एन रीजन को नेगेटिव से अटैच करेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट होता है उसका ग्राफ हमारे पास ये बनता है, और रिवर्स में हमारे पास ऐसे बनता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, एक टाइम पे तो लीनियर होते हैं, उसके बाद जैसे ही कोई सॉलिड मटेरियल, कोई कंडक्टर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे सारे बॉन्ड ब्रेक्स कर लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, और उसके बाद वैल्यू करंट की क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। सेम प्रोसेस ये रिवर्स बाइसिंग में होता है। तो इस प्रोसेस में भी ओम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं हो रहा। सो दीज टू आर द लिमिटेशंस। इनसे हमारे पास क्या कंक्लूजन आई, कंक्लूजन ये आई कि अगर हम वोल्टेज की मैक्सिमम अमाउंट कर दे, वो वोल्टेज को मैक्सिमम कर दे, मैक्सिमम करने से करंट क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू एक फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द, हम बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट, और हम बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हैं चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो सभी अपने बॉन्ड्स ब्रेक करके फ्री घूम रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू करंट की आ जाती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।